नमस्ते डियर चिल्ड्रन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया सफर, एक नई जर्नी मेरे साथ। ये है क्लास 9th ज्योग्राफी। सोशल साइंस हमेशा से ही बच्चों का थोड़ा कम पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है, बट आई विल अश्योर यू विद मी, not only it will become your favorite subject, you will start liking this subject. Myself, Mrs. Sushma Best, I have teaching experience of more than 25 years. In these 25 years, I have got so much love and motivation from my students that today I have taken a step to make my own YouTube channel. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊंगी, लेकिन मेरे बच्चों का कहना था कि मैम आप YouTube चैनल बनाइए तो सही, हम हैं आपके शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। तो उनके ही मोटिवेशन से आज मैं ये चैनल बना रही हूँ। तो लेट्स बिगिन अवर जर्नी। एंड वन थिंग टू टेल यू दैट सोशल साइंस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर अवर जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में इसका इतना बड़ा शेयर है कि अगर आप 9th से बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दें तो वेन एवर यू विल गो एंड गिव योर एनी एग्जाम आफ्टर क्लास 12th और ग्रेजुएशन, इट विल गिव यू अ ग्रेट हेल्प। तो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी। हाँ, वन थिंग आई हैव फॉरगॉट टू टेल यू, वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी एकेडमिया बाय मिसेस सुषमा बेस्ट। Okay, first chapter of geography, class 9th. We will cover following points in this chapter: India, its location; India, its size; India and its contact with the other countries in the world; India's neighbors, do you know? And lastly, we will take map skill. Okay, first of all, India's location. Okay beta, 100% concentration. India location. बेटा आप लोगों के मन में एक ज़ील होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए इंडिया के बारे में जानने का। वेयर इंडिया इज ऑन द ग्लोब, वेयर इज इंडिया लोकेटेड ऑन द वर्ल्ड मैप इन द एशिया कॉन्टिनेंट। तो इंडिया की लोकेशन है कहां पर? इंडिया लाइज इन नदर्न हेमिस्फेयर। व्हाट इज नदर्न हेमिस्फेयर? वी हैव डिवाइडेड the earth into two hemispheres by this major latitude. Its name is 0 degree equator. This is latitude. Lativi line is latitude. These are imaginary lines. You will not see these lines on the earth anywhere. These are imaginary lines. Only they are drawn on the globe or on the map to make the study of geography easier and to locate any place on the map with the help of latitudes and longitudes. So this is our major latitude, 0 degree equator, which divide earth into two equal halves. The northern half is called northern hemisphere. This is northern hemisphere, and the southern half is called southern hemisphere. So India lies in northern hemisphere. So it means India lies somewhere here. Anywhere it can lie here in the north. But north is quite big. Where does India lie? India lie here or here. For making it more easier, we will take one important longitude. This longitude is again 0 degree prime meridian. Its name is 0 degree prime. Why meridian? Meridian is also the other name for longitude. Okay, so prime meridian again divides the earth into two halves: western hemisphere and eastern hemisphere. Now where does India lie? In which quarter India is? India is in northern hemisphere and India is in eastern hemisphere. It means now we have got 1/4 of the circle. That where is India? India lies somewhere. India can be here, India can be here,
India can be here, India can be here. We have got one place. Now where exactly India lies? हमको एक क्वार्टर तो मिल गया कि इंडिया इधर है, नदर्न हेमिस्फीयर में है इसलिए ऊपर है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है इसीलिए इधर है, लेकिन एग्जैक्टली इंडिया कहां पर है इसको ढूंढने के लिए हमको हेल्प लेनी है लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ कंट्री. द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ कंट्री इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट. This you have to remember beta by heart. Latitudinal extent of India. Lati means lati. Latitudinal extent कहाँ कितना है हमारा 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north. ये हमको मालूम चल गया. Now 8 degree means this is 0 somewhere 1 2 3 4 5 6 8 approximately 8 is somewhere here. Now 37. This is 8 10 20 25 30 approximately 37 is somewhere here. So this is the region Jammu and Kashmir area where which touches the northern. So India lies there. लेकिन इसके width कैसे मालूम चले? What is the west longitudinal extent? This also is very important to know the exact location of the any country. Today we are taking India. Longitudinal extent 68 degrees 7 minutes east to 97 degree 25 minutes east. So 67 to 68 degree to 97. 68 degree. This is 10, 20, 30, 40, 50, 60 like this longitude run. So somewhere this is 68 degree where our Gujarat touches the 68 degree 7 minutes and here Arunachal Pradesh this is 97 degree 25 minutes east. So where the two latitudes and two longitudes will cross, that box is the exact location of any country. You can play this game with your friends also. Take a world map and take any small country and ask your friends to locate that place on the map or on the globe. तो they will keep finding, they will not able to find. आप फिर बोलो मैं कुछ क्लू देता हूँ. It is in northern hemisphere, it is in southern hemisphere, ये यहाँ पर है, आपने क्लू दिया फिर भी नहीं ढूंढ पाए. तो लास्ट जो हमारा एग्जैक्ट उस जगह पर पहुंचने का तरीका क्या है? टू गिव देम लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द कंट्री. एग्जैक्टली वेयर दीज टू लैटिट्यूड्स एंड टू लॉन्गिट्यूड्स विल इंटरसेक्ट, दैट इज द place which we are looking for. So latitude and longitude are imaginary, but they help us to locate a place on the globe or on the map wherever we are looking for it. So latitudinal and longitudinal extent of the country is very important to know the location. Okay, now one important latitude which passes from the center of India is Tropic of Cancer. Tropic of Cancer now is 23.5 degree north. Tropic of Cancer, the degree is 23.5 degree north. ओके कुछ बच्चे इस बात से कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपने ये लाइन में भी आपने लिखा 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, यहाँ पर भी आपने लिखा 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ. हम है तो ये हमारा साउथ, लेकिन लिखा हम इसमें क्या रहे हैं? नॉर्थ. ऐसा किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हम कंप्लीटली नदर्न हेमिस्फीयर में हैं. इक्वेटर ये जा रही है, इक्वेटर 0 डिग्री है, हम इसके ऊपर हैं. ऊपर होने के कारण जो हमारा साउथ है उसमें भी हम नॉर्थ ही लिखेंगे. ओके, सो दिस इज लैटिट्यूड. लेकिन एक और चीज आपको मालूम होगा कि ये जो हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, यहां तक अंडमान और निकोबार आइलैंड का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इस सदर्न मोस्ट पॉइंट से भी नीचे है. ये तो 8 डिग्री 4 मिनट्स है, लेकिन अंडमान निकोबार का जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इसका जो कि सुनामीज में सबमर्ज हो गया था पानी में, लेकिन हम उसे अपना सदर्न मोस्ट पॉइंट ही मानते हैं,
इसकी डिग्री क्या है, ये भी इक्वेटर से तो ऊपर ही है लेकिन इससे नीचे है, तो इसकी डिग्री भी आपको याद रखनी है, 6 डिग्री 4-5 मिनट्स नॉर्थ। ओके, अब आप पूछेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये है इंडिया का मेन लैंड, इंडियाज मेन लैंड, द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडियाज मेन लैंड। मेन लैंड जब क्वेश्चन में होता है देन वी राइट 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। अगर क्वेश्चन होता है विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, यूनियन मीन्स वी इंक्लूड अंडमान एंड लक्षद्वीप, देन it is Indian Union. So southernmost point of Indian Union, then it will be Indira Point and its latitudinal extent is 6 degree 4-5 minutes north. North is north. North कभी south नहीं होगा. We lie completely in northern hemisphere. Similarly, this is its the west part of India, 68 degree 7 minutes east. ये भी ईस्ट है, ये तो अरुणाचल प्रदेश है ही ईस्ट में, ये है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो कंप्लीट वेस्ट में भी हम ईस्ट ही लिखेंगे क्योंकि हम पूरी तरीके से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हैं। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट वन इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, लैटिट्यूड बोलते ही समझ जाओ लेटिव ही है, दिमाग में आ गया। लैटिट्यूड विच डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स, ये यहां से पास होती है और यहां तक, ऑलमोस्ट इट डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का हमारे क्लाइमेट में क्या असर पड़ता है, ये पहले तो आप ये याद करिए कि फ्रॉम हाउ मेनी स्टेट इट पासिस थ्रू। ओके, चलो नंबरिंग करना शुरू करते हैं। गुजरात नंबर 1, ये राजस्थान के भी साउथ से पास हो रही है, नंबर 2, मध्य प्रदेश नंबर 3, छत्तीसगढ़ नंबर 4, झारखंड नंबर 5, वेस्ट बंगाल नंबर 6, त्रिपुरा नंबर 7 and Mizoram number 8. So these are the 8 states from where Tropic of Cancer passes. Okay. Now the extent, the north-south distance of India is, कितना है ये distance? This distance is 3214 kilometer. एंड वेस्ट ईस्ट डिस्टेंस यहां से शुरू होके इस कॉर्नर वाले ईस्ट तक ये है 2933 किलोमीटर। So these are some facts you have to remember about India. So what did we do in location of India? India lies in northern hemisphere, India lies in eastern hemisphere, latitudinal and longitudinal extent of the country 8 degree 4 minutes, 37 degree 6 minutes north, longitudinal extent of the country, India's mainland is this, Indian Union, the southernmost point is this, Tropic of Cancer divides into 2 halves, then the 8 states, and then the north-south distance is 3214 kilometer and east-west distance is 2933 kilometers. Okay. Now about India's size. This was all about India's location. Now what is India's size in the world? वर्ल्ड में इंडिया का क्या साइज है, उस अब हम सेकेंड टॉपिक में, आई होप इंडिया लोकेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ इंडिया साइज। इंडिया साइज, India is 7th largest country area wise in the world. So it is 7th largest country in the world. Number 1. Number 2, the total area of India is 3.28 million square kilometer. This is only
2.4% ऑफ द टोटल वर्ल्ड के में जितना भी एरिया है उसका केवल 2.4% हमारे पास है. With this 2.4%, with this 3.28 million square kilometer area, we are 7th largest country in the world. Now, which are the 6 larger country than India? इसके लिए आप एक निमोनिक याद करेंगे जल्दी से मेरे साथ. RCUCBA. RCUCBA. बोलो 5 बार. RCUCBA. RCUCBA. R for Russia, C for Canada, U for USA, C for again China, B for Brazil, and A for Australia. And 7th number is of India. So, if we talk about size of India, India is 7th largest country. India's area is this much. It is only 2.4% of the world's total land, and seven larger country or 6 larger country than India are RCUCBA. Okay. Now the total land boundary of India. Land boundary का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? Land का border of India with other countries. Total land boundary of India is 15,200 kilometer. This will also come in size of India, that how much land boundary do we have with other countries. We have land boundary of 15,200 kilometer. Now what is the length of coastline? The coastline, हमारी एक बहुत बड़ी coastline है, इस coastline की लेंथ है 7516.6 kilometer, including the islands, both island groups Lakshadweep and Andaman and Nicobar, plus our both sides this coastline, complete coastline, this one from Gujarat to Kanyakumari, then till here, plus these 2 island groups. The length of total coastline is 7516 kilometer. 7516 kilometer. Okay. So this was about the size of India. So size and location. दोनों में बेटा कंफ्यूज नहीं होना. लोकेशन में हमको नदर्न, सदर्न हेमिस्फीयर ये सब कुछ लिखना था, प्लस हमको लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल हमको ये लिखना था. अच्छा, अभी एक और चीज रह गई है जो आपको बताना है लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर. दैट इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली 30 लॉन्गिट्यूड्स. 30 लॉन्गिट्यूड्स आप रफली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. 68 to 97.25. तो 30, 68, 78, 88, 98 से थोड़ा सा कम. 30 लॉन्गिट्यूड्स हमारी यहाँ पर हम इंडिया में हैं. 30 longitudes. These 30 longitudes, what is the role of this longitude? We have 30 latitudes and 30 longitudes. 8 is our southernmost point, 8 degree 4 minutes, रफली 8 मान लेते हैं. ये 37 है, तो यहां पर भी 30 है, लेती हुई लाइन भी 30 है और लॉन्गिट्यूड भी 30 है. इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली 30 लॉन्गिट्यूड्स एंड 30 लैटिट्यूड्स. तो अभी आपको मैंने बताया था इमेजिनरी लाइंस हैं, लेकिन एक चीज बताई थी कि ये लोकेट करने में कितना आराम देती है. लोकेशन में बिल्कुल हम उसी जगह को पहुंच जाते हैं जिस अगर हमें किसी जगह की लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मालूम है. तो एक तो इनका काम हो गया टू लोकेट अ प्लेस ऑन द मैप और ऑन द ग्लोब. दूसरा लैटिट्यूड का क्या काम है. अब लैटिट्यूड सपोजिटली यहां पर कोई रहता है उत्तराखंड में, देहरादून में, यहां पर रहता है देहरादून में, उसका क्लाइमेट, और एक यहां पर रहता है तमिलनाडु में, बिल्कुल साउथ में. आप किसी से पूछते हैं या आपका कोई पेन फ्रेंड है, पेन फ्रेंड तो होते नहीं, अब तो व्हाट्सएप और टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया. हमारे टाइम में पेन फ्रेंड्स हुआ करते थे दूसरे देशों के. जब हम केवल
जैसे कोई मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे अपने कंट्री का नाम नहीं बताया, उसने मुझे बस यही बोला आई लिव इन लैटिट्यूड 70 डिग्री नॉर्थ। 70 डिग्री नॉर्थ मतलब 0 डिग्री से 70 डिग्री, हम तो 8 to 37 है। इसका मतलब कैसा क्लाइमेट होगा वहां पर? फार फ्रॉम द इक्वेटर इट विल हैव कोल्ड क्लाइमेट। वो तो आर्कटिक रीजन में चला गया। तो किसी की भी कंट्री की लैटिट्यूड जानकर हम उसके क्लाइमेट का एक अप्रोक्सीमेटली अंदाजा लगा सकते हैं। अगर जो प्लेस यहां पर है, केरला वाला बच्चा या तमिलनाडु वाला बच्चा बोलेगा आई लिव एट 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, जो कन्याकुमारी में, जो यहां पर J&K वाला या देहरादून वाला बच्चा हम 35 डिग्री या 30 डिग्री नॉर्थ, तो इट इज वेरी मच ऑब्वियस दैट दिस प्लेस इज हॉटर than this place. As we go away from the equator, temperature decreases. Okay? और इसी तरह से ऊपर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो किसी भी जगह का लैटिट्यूड जानकर हम उसके क्लाइमेट के बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं। और भी फैक्टर्स हैं जो हम क्लाइमेट चैप्टर में कवर करेंगे, लेकिन लैटिट्यूड हमको एक जनरल पिक्चर दे देती है अबाउट द क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया। Understood the role of climate? Now longitude. What is the role of longitude? One is location, that is okay. But what is one more function of longitude is to decide time. Longitude, there are 30 longitude in India. And Earth takes 4 minutes to cross one longitude. तो एक यहां से ईस्ट से अर्थ, यहाँ 30 लॉन्गिट्यूड्स है हमारे पास, 30 लॉन्गिट्यूड्स इक्वली, और हर लॉन्गिट्यूड का अपना टाइम होता है। क्योंकि अर्थ हर, यहाँ पर अगर 4 बज रहे हैं सुबह के, यहाँ पर 4:04, 4:08, 4:12, यहाँ पर 4:16, हर 4 मिनट पे यहाँ का डिफरेंस आ रहा है हर लॉन्गिट्यूड में। तो जो प्लेसेस इस तरह से, जो टाइम इस लॉन्गिट्यूड पे, इस लॉन्गिट्यूड पे, इस लॉन्गिट्यूड पे हो रहा है, वो वहां का लोकल टाइम है। द लोकल टाइम, व्हाट इज लोकल टाइम? लोकल टाइम इज द टाइम ऑन द लॉन्गिट्यूड विच इज पासिंग फ्रॉम दैट एरिया। But 30 time in one country will create how much confusion in the country. You can think of confusion. So many things like trains, aeroplanes, they all run according to time, and there will be a lot of chaos in the country. So, to bring a uniformity of time throughout the country and to avoid this all confusion of time in the country, we have selected one longitude. The longitude, the time on that longitude is accepted as the Indian Standard Time, IST. इस लॉन्गिट्यूड की डिग्री भी याद करना बेटा बहुत जरूरी है। ये है हमारी ये लॉन्गिट्यूड, ये है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। जितनी भी लॉन्गिट्यूड होंगी उनके साथ ईस्ट तो लगना ही लगना है, ये हमने पहले ही समझा चुके हैं। तो ये जो लाइन है ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस होती है। यहाँ हमारी एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है। इसके ऊपर जो भी टाइम होगा वो ईस्ट वाले भी इसको फॉलो करेंगे और वेस्ट वाले सब जगह इसको ही फॉलो करेंगे। इस लाइन को हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। मेरिडियन इज सिनोनिम ऑफ लॉन्गिट्यूड। और इसके ऊपर जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इज इट क्लियर? सो द रोल ऑफ लॉन्गिट्यूड इन डिसाइडिंग द टाइम ऑफ दैट एरिया। Okay, so we have finished with India's size and India's location. Now the next topic is India and the world. India and the world. India का वर्ल्ड में, वर्ल्ड के साथ कैसे रिलेशन थे, कैसे हम लोग फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स, बहुत पुराने टाइम से इंडिया जो है, इंडिया का जो वर्ल्ड के साथ रिलेशंस हैं वो बहुत क्लोज रहे हैं।
India's relation, India and the world. You see India on this world map. You can see how India is located prominently at the head of the Indian Ocean, on the top of the Indian Ocean. An ocean is named after a country. India has a longest coastline in the Indian Ocean, and that is why its name, the ocean is named after this. Okay. Next is India lies on the head of Indian Ocean. बहुत पहले टाइम पर जब एयरवेज भी नहीं होते थे, उस समय सारा जितना भी ट्रेवलिंग और ट्रेड होता था, इट इज थ्रू वाटरवेज के थ्रू होता था. और वाटरवेज में, एज वी ऑल नो, वाटरवे इज द वेरी स्लोएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बट वेरी सुटेबल फॉर बल्की एंड हैवी गुड्स. सो वाटरवेज से हम ट्रांसपोर्ट करते थे. तो वाटरवेज से ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो हमारा देश जिसने हमें रूल किया, इंपीरियलिस्ट कंट्री, दिस इज द लोकेशन ऑफ ब्रिटेन. ये किस तरीके से इंडिया में आया? इतना बड़ा ये एक रूट लेता था, पूरा अटलांटिक ओशियन क्रॉस किया. इस कॉर्नर को हम कहते हैं केप ऑफ गुड होप. केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके फिर ऐसे एंटर करा उसने इंडिया के साउथ में, या मुंबई से इंडिया में एंटर किया. This much long distance they crossed and entered India. Now in 1869, this is very important year, you must remember this year, because the father of the nation was born on this particular year. और दूसरी चीज के लिए याद करना है, स्वेज कैनाल. स्वेज कैनाल was constructed in this year between, अब आप देखिए, पहले इतना बड़ा रूट था, अब स्वेज कैनाल बन गई. स्वेज कैनाल कहां बनी? यू कैन सी दिस रेड सी बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड अफ्रीका. ये पतला सा एक सी है, रेड सी. ऊपर एक मेडिटेरेनियन सी है, ये दिख रहा है. अब रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक छोटी सी कैनाल बना, जो पेपर में छोटी दिख रही है, वैसे बड़ी कैनाल है, स्वेज कैनाल बनी. अब इंडिया का डिस्टेंस, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और इंडिया का डिस्टेंस कितना कम हो गया. यहां से निकले इंडिया से, मुंबई पोर्ट से निकले, रेड सी में एंटर किया, स्वेज कैनाल से होते हुए मेडिटेरेनियन सी, और यहां से घूमते हुए यहां पहुंच गए हम यूरोपियन कंट्रीज. एनी यूरोपियन कंट्रीज यहां से निकल के मेडिटेरेनियन सी और एंटर कर गए यूरोपियन कंट्रीज. सो दिस 7,000 किलोमीटर्स आर रिड्यूस्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्वेज कैनाल. Okay, now you can see India's neighbors. India had very good relations with its neighbors from ancient times. एंशियंट टाइम से, यहाँ से सऊदी अरेबिया से, ये हमारा जो राजस्थान का साइड है, यहाँ से बहुत हिमालयास क्रॉस तो नहीं हो सकता था, लेकिन हिमालयास में बहुत सारे पासेस थे. इन पासेस से बहुत सारे ट्रेवलर्स, ह्वेनसांग पढ़ा होगा छोटी क्लास में, हर्षवर्धन के टाइम पर आया था. ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, देन फाहियान, ऐसे बड़े बड़े ट्रेवलर्स इंडिया में आए. और इंडिया में जब आकर उन्होंने इंडिया को देखा, बस देखते ही रह गए, क्योंकि इंडिया जैसा कंट्री उन्होंने कहीं नहीं देखा था. अशोका के टाइम पर जब ट्रेवलर्स आए, उन्होंने देखा अशोका का पैलेस, वो आंखें उनकी खुली की खुली रह गई. कहते ये पैलेस कोई ह्यूमन बीइंग नहीं बना सकते, इट इज मेड बाय गॉड. इतना खूबसूरत काम इंडिया में होता था. इंडिया वॉज नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर, इंडिया वॉज नोन फॉर इट्स रामायण, इंडिया वॉज नोन फॉर इट्स पंचतंत्र, फॉर इट्स उपनिषद्स. इंडिया में न्यूमरल सिस्टम आया, इंडिया में डेसिमल सिस्टम आया. इंडिया के बड़े बड़े आयुर्वेदिक साइंटिस्ट, वारा मेहर, इंडियन आर्यभट्टा, सुश्रुत, चरक, इन जैसे नाम के जो लोग थे जिन्होंने साइंस डेवलप करी इंडिया में, जब वो इंडिया में आए और ये सारा इंडिया से न्यूमरल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, उपनिषद्स की कॉपी करके सब लेकर गए अपने देशों में. ऑल दीज अरेबियन कंट्रीज, द इंडियन सिस्टम, इंडियन बुक्स रीच टू दीज कंट्रीज.
Okay, but when they came with their ideas also. जब हम किसी के साथ मिलते हैं तो केवल देते ही नहीं है, हम उनसे कुछ सीखते भी हैं. हमने उनसे सीखा आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग ऑफ मेकिंग बिल्डिंग्स. आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग ऑफ मेकिंग बिल्डिंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट हमने उनसे सीखा हाउ टू मेक द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इन अ डोम शेप. डोम शेप इज लाइक दिस. This dome shaped building is being learnt from them only. Then we have learnt the मीनार, how to make मीनार्स. मीनार्स आप देखते हैं हर गुरुद्वारे में या मॉस्क के ऊपर मीनार्स होती हैं. मीनार्स हमने सीखी. आर्क, द मेकिंग आर्क वी लर्न फ्रॉम देम. और वो इंडिया के स्पाइसेस के लिए, इंडिया के एक मुस्लिम क्लोथ होता था जो एक रिंग से पूरा थान निकल जाता था, उसके लिए इंडिया में आते रहे. So this is India's contact with the world was always very great. India was always a favorable destination for the travelers and at present for tourists also. So with this we finish our third topic, India and the world. So for this lecture this much is sufficient. Or we will continue the next part of our chapter in my second lecture. Thank you so much. Have a nice day.